Hello students, in this lecture we will continue the remaining question of exercise 4.2. In lecture 4 we have done the question number 1st, 2nd, 3rd along the explanation of properties of determinant. To do the next question, once again quick revision I am taking properties of determinant. Please continuously revise these properties, then you will be perfect in these questions, in this concept. First property, the value of determinant remains unchanged if its rows or columns are interchanged. अगर हम सारी rows को column से replace कर दें तो value of determinant will unchanged, same value we will get it. और अगर कोई भी दो रो और दो column को interchange कर रहे हैं then the sign of determinant changes. Second property. Third, अगर दो रो और कॉलम आइडेंटिकल है, if any two rows or columns of determinant are identical, that is corresponding elements are same, then the value of determinant is 0. Fourth property, if all the elements of any row or column of a matrix are 0, then determinant value is 0. As any row or column all elements are 0, then the value of determinant are 0. These are the two properties by which directly we can write without expanding value of determinant is 0. In question number 1 to 5 they have given the instruction in exercise 4.2 without expanding. So these properties we are using while solving the question. Next property, fifth, if each element of a row or column of determinant is multiplied by constant k, then the value gets multiplied by k. अगर किसी भी रो और कॉलम में हम k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा. बाहर क्या लिखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट के 1/k, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम. अदरवाइज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स. अगर पहले 2 मिल रही थी और 5 का मल्टीप्लाई करने तो नई वैल्यू क्या मिल जाएगी 10. If sum of elements of row or column of determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant. लेक्चर 4 में मैंने कहा था जब इसमें क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू. सो जस्ट नाउ आल्सो वी आर नॉट डिस्कसिंग if to each element of any row or column of determinant the eq multiples of corresponding element of other row or column are added, then the value of determinant remains same. इसका मीनिंग क्या है? किसी भी रो में हम किसी भी कांस्टेंट और नंबर का मल्टीप्लाई करें किसी और रो में, then we will add it, then the value of determinant is unchanged. Like elementary operation, ri gives ri plus k rj, r1 gives r1 plus 2 r2, c1 gives c1 plus 3 c2. तो यहाँ हम किसी भी कॉलम या रो के अंदर किसी नंबर या स्केलर का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो और कॉलम में ऐड कर रहे, डिटर्मिनेंट वैल्यू रिमेन सेम. इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम लोग, पर इन दोनों के प्रूफ हम लोग सबसे लास्ट लेक्चर में देखेंगे. सो नाउ लेट अस बिगिन द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 4.2, विदाउट एक्सपांडिंग वी हैव टू प्रूव इक्वल टू 0. अभी मैंने आपको समझाया हाउ विदाउट एक्सपांडिंग वी कैन प्रूव. अगर दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या किसी भी रो और कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए. इन क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही पैटर्न नहीं रहता है. देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व इट, सो मेनी वेज वी कैन डू इट. So other than what I am explaining, there are so many methods. You can use any of this if you are seeing in some other reference book, in some other guides, different solution. So that should possible. Taking LHS हम लोगों ने लिखा. हमें क्या करना है, कोई भी दो कॉलम को आइडेंटिकल करना है. यहाँ मैंने ब्रैकेट को एक्सपांड कर दिया है. सो व्हाट वी आर गेटिंग AB plus AC, BC plus CA, CA plus AB. हाउ वी कैन मेक ए आइडेंटिकल. अगर हम लोग कॉलम C2 के सारे एलिमेंट को C3 में ऐड कर दें तो कॉलम जो नया बनेगा दैट ऑल एलिमेंट आर सेम. लेट अस सी बाय C3 गिव्स C3 प्लस C2. हमने कॉलम C2 को C3 में ऐड करा है. एरो के आगे जो लिखते हैं चेंजेस विल कम इन दैट रो और कॉलम. तो यहाँ C3 में आया, जैसे ही ऐड करा तो सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए. हमारे पास क्या C3 में मिल रहा है AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC. अब हम लोग C3 कॉलम से कॉमन लेंगे. व्हाट वी आर टेकिंग कॉमन, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल दिस. टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC बाय C3. जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 1 1. एंड first column and third column are identical, and by the property if any two rows or columns are identical then the value of determinant is 0. No need to expand it.
जब भी हम कॉमन लेते हैं तो कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैट्रिक्स में जब हम किसी भी एलिमेंट को कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेना रहता है, पर डिटर्मिनेंट में हम किसी भी एक रो या एक कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू डिटर्मिनेंट आर इक्वल। 10th क्लास से हम लोग जब प्रूव दैट क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो हम लोगों ने देखा था वी आर टेकिंग दैट साइड इन विच नंबर ऑफ टर्म इज मोर, तो यहाँ हम लोग LHS ले रहे हैं। LHS के अंदर हम लोगों को जो भी टर्म्स है, ईच टर्म इज फॉर्म बाय 2 टर्म्स लाइक दिस एलिमेंट A11 इज फॉर्म बाय 2 टर्म B प्लस C, और RHS में हमारे पास क्या है, सिंगल एलिमेंट दे रखे A B C। सो आवर पर्पस इज टू चेंज इनटू सिंगल एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉमन लेना है। बाहर हमें क्या दिख रहा है 2, तो हम लोग वट एवर ऑपरेशन वी विल अप्लाई इन सच ए वे दैट वी विल गेट इट RHS टर्म्स एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं तो ये सारी टर्म्स मिक्स हो जाएंगी, ABC PQRS XYZ, और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और विदाउट एक्सपांडिंग मेंशन कर रखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के अंदर, विदाउट एक्सपांडिंग वी हैव टू प्रूव इट, तो हम एक्सपांड भी नहीं कर सकते। तो अब हम लोग यहाँ सारे कांस्टेंट को मिक्स नहीं करेंगे, ABC को सेपरेट रखेंगे, PQR को सेपरेट रखेंगे, XYZ को सेपरेट रखेंगे। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि हमें 2 कॉमन मिल जाए और ये मिक्स भी नहीं हो। तो अगर हम रोज में ऑपरेशन लगाते हैं, दैट इज R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2A प्लस B प्लस C, 2P प्लस Q प्लस R, 2X प्लस Y प्लस Z। नाउ वी कैन टेक कॉमन 2 फ्रॉम द फर्स्ट रो। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिटर्मिनेंट में हम किसी भी एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, पर मैट्रिक्स से जब कॉमन लेना है तो सारे एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए। एंड वाइज वर्सा, जब हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है, और जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, 2 कॉमन लिया। Now we got it in place of 2 element, 3 element combination we got it in R1। हमें तो क्या करना है, RHS में देखे सिंगल एलिमेंट चाहिए ABC। Now we will apply the operation, R2 gives R2 minus R1 and R3 minus R1। जैसे ही R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते, C is cancelled by C, A is cancelled by A, and outside minus sign is there, so what is left, minus B is left। In the same way, minus Q minus Y minus C minus R minus Z when we apply this property. Now with the help of these 2 rows we will change the first row element into a single element। So by R1 gives R1 plus R2 plus R3, जैसे ही हम लोगों ने ऑपरेशन अप्लाई करा हमें क्या मिला, APX। Now we don't want this negative sign in RHS, we want positive sign, so from second row we will take common, taking common minus from R2 and R3। So minus sign we have taken common, 2 into minus 1 whole square, and minus 1 whole square is what, 1 into 2, 2, and that is equal to RHS, so is equal to RHS, and our question is complete। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 6 हम लोग लास्ट में देखेंगे, लास्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। हाउ टू प्रूव दीज आर इक्वल, क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे हमें सिर्फ कॉमन लेना है और हम एक्सपांड करके प्रूव कर सकते हैं, और विदाउट एक्सपांडिंग वी कैन आल्सो प्रूव इट टेकिंग LHS लिखा। यहाँ पे आप देखिए कॉलम C1 में सब जगह व्हाट मल्टीपल वी आर सीइंग, A, इन कॉलम C2 B, एंड कॉलम C3 C। सो टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू वॉन्ट, अगर आप चाहें तो रो से भी कॉमन ले सकते हैं ABC, देन ऑल्सो यू आर एबल टू डू इट। हमने जैसे ही कॉमन लिया कॉलम C1 C2 C3 से ABC, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस ABC, B माइनस C इन सेकेंड कॉलम, B माइनस C इन थर्ड कॉलम। अगेन वी आर ऑब्जर्विंग के फर्स्ट रो में सब जगह है, सेकेंड रो में B है, थर्ड रो में C। अगेन वी विल टेक कॉमन ABC फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जैसे ही कॉमन लिया तो अगेन आउटसाइड व्हाट विल राइट इट, ABC, व्हाट विल गेट इट, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और अंदर हमें क्या सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, -1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1। नाउ बाय C1 gives C1 plus C2, जैसे ही हमने प्रॉपर्टी लगाई C1 gives C1 plus C2, all of you see it, this first A11 and A21
this element becomes 0. Now we will expand from that row and column in which maximum element are 0. So we are expanding by C1 and 0 0, no need to write, only inside you will write it by expanding by column C1, and we are expanding, so 1 into 1 minus 1 into 1, so 1 plus 1, so 2 into 2 4 a square b square c square, and we are getting RHS, and our question is complete. Next question, question number 8, first part we have to prove is this determinant value is equal to a minus b, b minus c, c minus. जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो हम इस प्रकार से अप्लाई करेंगे कि जो हमारे पास RHS में टर्म है, द एलिमेंट विल चेंज इन दैट फॉर्म, दैट इज a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है. यहाँ ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम में 1 1 दे रखे हैं, पर कई बार यहाँ 1 1 नहीं दे रखा रहता है. तो अवर फर्स्ट स्टेप इज टू ट्राई टू चेंज एनी रो और कॉलम ऑल एलिमेंट इनटू 1. जब क्वेश्चन आएंगे उस पैटर्न के तो उस समय मैं आपको रिमार्क के तौर पे एक्सप्लेन करूंगा. बट हियर व्हेन वी आर गेटिंग 1 1 1, सो आवर क्वेश्चन बिकम वेरी इजी. हम लोग उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सारे एलिमेंट 1 है, and then we will change any 2 element into 0 taking LHS, and we are applying the property by R1 gives R1 minus R2, R2 gives R2 minus R3. If you want you can also apply R3 gives R3 minus R2, R2 gives R2 minus R1. पर हम जब भी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे RHS में एलिमेंट किस फॉर्म में दे रखें. As I am applying this property, R1 gives R1 minus R2, so the element is changing in this. Look what we want in RHS, A minus B. So we are applying this property R1 minus R2, 1 minus 1 0, A minus B, A square minus B square. Same way R2 minus R3, R2 minus R3. So we are getting 1 minus 1 0, B minus C, B square minus C square, 1 C, C square. Now we will take common. We are applying the identity a square minus b, a minus b, a plus b, b minus c, b plus c verbally, and then we will take common a minus b from R1. So what we are getting, a minus b from R1, so 0 1, and here what is left, a plus b. In the same way from R2, b minus c. So what we are getting, b minus c as we have taken from R2, 1 0 1 b plus c. Now as we are getting any 2 element 0, we can expand, because they have not mentioned in the beginning that without expanding. They said by using the properties of determinant prove that. So a minus b, b minus c, we have by first column we are expanding 0 0, so no need to write it, only with 1 we have to write the value 1 into how we are solving determinant we are getting by deleting the row and column in which element lie, multiply the diagonal element minus off diagonal element, so 1 into b plus c minus a plus b into 1, simplify it. So what we are getting, a minus b, b minus c into c minus a is equal to RHS, and our question is complete.